we have seen the splitting pattern in octahedral complexes. In octahedral complexes, uh, EG sets having high energy, okay, and T2G set d orbital, 3d orbital, that is T2G sets, okay, uh, lying on lower energy levels, okay. These orbitals are at zero energy level, okay, for this octahedral complexes, okay. the energy gap the energy gap between EG and T2G, this two level, is 10 dq, okay, 10 dq. We have seen that for octahedral complexes, okay. And these all are the shape of d orbitals, okay. So dx square y square present on the x and y axis, along the axis, okay, and dz square is also present on the axis, but dxy, dyz and dxz are present in between the axis, okay. Now ligands in octahedral complexes, in octahedral coordination compounds, ligands are approaching from the axis, okay, from the axis. The repulsion will take place, okay, the repulsion will take place. Because of repulsion, the energy of the orbitals, okay, the energy of the orbitals, d orbitals, present on the axis, along the axis, gets increased, okay. See, the energy of d orbital present on the along the axis, okay, gets increases, and the set is called EG set, okay. So if ligand is approaching from x, y and z axis, this is the geometry, octahedral geometry for the coordination compound, okay. So repulsion will take place and energy level increases, and these three orbitals dxy, dyz and dxz, these are present in between the axis, okay, and ligands are approaching from the axis, okay, to the axis, to the central metal atom, okay, from the axis. So the energy level of T2G, these three orbitals are called T2G, gets the energy will decrease, okay. EG and T2G. T2G is for yes, these three orbitals which are present in between the axis, T2G. इसको याद रखने के लिए तीन ऑर्बिटल है तो तीन लेटर होंगे T2G, yes. And for EG this two orbitals are present, तो the sets is called EG. EG और T2G क्या होता है वो डिटेल नहीं करना है, सिर्फ this is a trick to remember, okay. EG and T2G, तीन ऑर्बिटल 3 letter T2G, 2 orbitals 2 letter EG, okay. Now we'll see the tetrahedral complexes, okay, crystal field splitting in tetrahedral complexes. Tetrahedral complexes, the coordination number will be 4, okay. A pattern of splitting of d orbitals, which is a key in the crystal field theory, is dependent on the ligand field environment. d ऑर्बिटल का जो स्प्लिटिंग का पैटर्न है वो किस पे डिपेंड करेगा, लिगैंड के एनवायरनमेंट पे, ओके, वेयर फ्रॉम वेयर द लिगैंड इज अप्रोचिंग, ओके, एंड रिपल्शन विल टेक्स प्लेस. सी, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दिस d orbital splitting in d orbital takes place like this. T2G placed at high energy levels and EG at lower energy level, okay. EG जो होगा लोअर एनर्जी, इसका अपोजिट ऑक्टाहेड्रल के अपोजिट होगा टेट्राहेड्रल में. और द एनर्जी गैप, okay, this energy gap is more in octahedral complexes, this energy gap is less in tetrahedral complexes. So T2G are present, T2G, this 3 orbital at higher energy level, okay, and these 2 orbitals present at lower energy level, and this is set EG में होगा x square minus y square. अब ये एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, these 2 orbital present on the axis. So ligands are approaching in tetrahedral complexes, ligands are approaching
from the axis, no, in between the axis. Okay, टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्री इस तरह से, सी, यस, दिस इज टेट्राहेड्रल. ओके, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. दिस इज डॉटेड लाइन जो है, दिस डॉटेड लाइन इज एक्सिस. ओके, एक्स वाई एंड जेड, एंड लिगेंड्स आर अप्रोचिंग इन बिटवीन द एक्सिस. तो एनर्जी जो होगा उस ऑर्बिटल का इंक्रीज होगा जो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है और लिगैंड के अपोजिट प्रेजेंट है. ओके, फ्रॉम वेयर द लिगैंड इज अप्रोचिंग. तो यस, ओके, ligands are approaching in xz, xy, zx and yz. okay, these three axes. तो एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? जो तीन सेट है T2G वाले, ठीक है, क्योंकि लिगैंड इधर से अप्रोच कर रहा है तो एनर्जी इन तीन ऑर्बिटल का ज़्यादा होगा. ओके, एंड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज मोर इन tetrahedral octahedral complexes and less, this difference is less in tetrahedral complexes. For octahedral complexes coordination number will be 6 and for tetrahedral coordination number will be C4. yes, coordination number 4. yes, this is the geometry. okay, the dxy, yz and zx orbitals with their lobes lying in between the axis point towards the ligands. On the other hand, dx square minus y square and dz square orbitals lie in between metal ligands bond axis. अभी बताया, ठीक है. The xy and yz and zx orbital experience more repulsion from ligand compared to, yes, x square minus y square and z square orbitals. Due to larger such repulsion, these three orbitals T2G orbitals are of higher energy while these two EG orbitals are relatively lower energy. Each electron entering on one of these orbital raises the energy by 4 dq, whereas that occupying the x square minus y square and z square orbitals lower it by 6 dq. This is dq is differential quantity. ये नहीं आपको वो याद करना है, सिर्फ 4 and 6 आपको याद रखना है. कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ हाइपोथेटिकल डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स इन लिगैंड फील्ड. ओके, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड assumed to be 10 dq. okay, much less, typically 4.9 compared to the octahedral environment. The crystal field splitting of d orbitals in tetrahedral ligand field is compared with octahedral. ओके, अभी देखा हमने कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल का लेस होगा एनर्जी गैप. ओके, दस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फेवर इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल इन D4 configuration, one electron would occupy T2G orbitals. The low spin tetrahedral complexes thus are not found. okay, तो एनर्जी गैप कम है तो मोस्टली पेयरिंग नहीं होगा यहाँ पे बताया, ठीक है. टिपिकली मेटल कॉम्प्लेक्सेस possessing the central metal ion with D8 electronic configuration, for example NiCO4, favors the tetrahedral structure. ओके, now see, इसको थोड़ा सा रफली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ये एनर्जी गैप क्या होता है ये याद रखना है, 10 dq. ओके, दिस इज 10 dq. उसको हम डेल्टा टी से डिनोट करेंगे, दिस एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ओके, डेल्टा टी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड ओ फॉर डेल्टा ओ इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. अब ये जो लाइन है इसको बैरी सेंटर बोलेंगे. दिस इज द लाइन, एवरेज लाइन. ओके, जिसपे हम इसको बोलते हैं जीरो पे है एनर्जी. ओके, अब इससे कम हो रहा है और इससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है. जिसका एनर्जी इससे कम है तो वो लोअर एनर्जी पे, हायर एनर्जी पे T2G है ऑक्टाहेड्रल में. तो आपको यहाँ पे क्या एनर्जी डालना है, 2/5 एंड 3/5. ओके, EG के लिए 3/5 याद रखना है, T2G के लिए 2/5. यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी डिफरेंस है. और इस लाइन से, दिस सेंटर लाइन, ओके, दिस सेंटर लाइन से ये जो डिफरेंस है एनर्जी, दिस इज -3/5. ओके, दिस इज 3 orbitals, so you have to write 2/5. okay, 2/5, and this is 2 orbitals, so you will write 3/5.
ओके, सो अपोजिट लिखना है आपको, ये वैल्यूज याद रखनी है। ओके, दिस इज यस, तो ये 1 आता है इसका आंसर। ओके, 2/5 एंड 3/5, ये याद रखना है एनर्जी का गैप। ओके, दिस इज बेरी सेंटर, दिस लाइन। ओके, यस। अब क्या है कि D7 अगर कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हमने देखा है, वीक फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में पेयरिंग होता है, बताया था। वीक फील्ड लिगैंड में फर्स्ट जो है हंट्स रूल के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं हर एक ऑर्बिटल्स में, देन पेयरिंग विल अकर। ओके, एग्जाम्पल विल टेक D7 कॉन्फ़िगरेशन first in octahedral complexes. If strong field ligand is there, SFL is a strong field ligand, how you will fill the electron? Okay, this for octahedral, Eg placed at higher energy level, T2G at lower energy level. Okay, T2G तो 3 dxy yz के exit. Okay, so इलेक्ट्रॉन को पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, पेयरिंग होगा 4 5 6 देन 7। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में फर्स्ट यू विल पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड देन फिल हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। इन वीक फील्ड लिगैंड द D7 कॉन्फ़िगरेशन, D7 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, फर्स्ट 1 2 3 4 5, ओके, 6 देन 7, सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे एक एक ऑर्बिटल में, देन जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उसका पेयरिंग करेंगे। ओके, फॉर वीक फील्ड लिगैंड, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। WFL वीक फील्ड लिगैंड, SFL इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो पहले पेयरिंग करना है इसका, और इसका क्या करना है आपको वीक फील्ड लिगैंड में, यस, बाद में पेयरिंग करना है, पहले फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये जो था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए था, एनर्जी गैप, एनर्जी लेवल। ओके, कैसे फॉर्म होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड स्क्वायर प्लेनर, ये 2 ज्योमेट्री याद रखना है। ओके, DSP2 इज फॉर स्क्वायर प्लेनर, SP3D और DSP3 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, नाउ factors affecting, this is a small topic, factors affecting in crystal field splitting energy। crystal field splitting energy और क्या क्या है, फर्स्ट सी, ये वाला पॉइंट है कि crystal field splitting energy is more in octahedral complexes than crystal field splitting energy in tetrahedral complexes। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, octahedral का splitting energy ज़्यादा होगा tetrahedral के कंपैरिजन में। ओके, now crystal field splitting energy is directly proportional to oxidation number of central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज़्यादा है तो उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ऑलरेडी हमने देखा है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा और वीक फील्ड लिगैंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, लेस होगा। इसीलिए हमने पेयरिंग और अनपेयरिंग फर्स्ट क्यों करते हैं वो भी रीज़न ऑलरेडी देखा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हाई, ओके, वीक फील्ड लिगैंड के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लो। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर देन टेट्राहेड्रल। ओके, एंड इफ crystal field splitting energy increases, oxidation number will also increases. Okay, is directly proportional to the oxidation number. Crystal field splitting energy is directly proportional to oxidation number of central metal atom. As we down the group, the crystal field energy increases. Okay, periodic table में d ऑर्बिटल की हम बात करते हैं। ओके, d ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट की मोस्टली हमने देखा कॉपर, Fe, ये सब जो है मेटल के एग्जाम्पल लिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड, 3D 4D एंड 5D, जैसे जैसे हम ग्रुप से नीचे जाते क्रिस्टल फील्ड एनर्जी
स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो इसको समराइज किया है 3-4 पॉइंट को, ये याद रखना है आपको। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड के लिए क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या होगा, ओके। ऑक्टाहेड्रल के लिए ज़्यादा होगा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। कलर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब कलर्स क्यों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक पर्टिकुलर कलर शो करता है, तो वो किस वजह से कलर होता है, कि क्या रीज़न है behind to the color of coordination compounds, okay। As discussed above, the formation of octahedral complexes is accompanied by splitting of d orbitals into T2g and EG sets, okay। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। separation of these two sets of orbital in octahedral splitting energy, that is delta 0, which can be measured from experiments. The delta O corresponds to a certain frequency of electromagnetic radiation, usually in visible range। visible range के लिए भी जो है ये लैम्बडा का वैल्यू क्या था विजिबल रेंज के लिए, विबग्योर, ओके। वो भी विजिबल रेंज के कलर शो करता है, ओके। और कलर कॉम्प्लीमेंट्री टू द एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी इज दस ऑब्जर्व। कंसिडर दिस एग्जाम्पल, बाद में देखते हैं, ठीक है। एग्जाम, द सेंट्रल मेटल इज टाइटेनियम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। डी जो है इसमें 3D, ओके। तो कलर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है ना, कलर के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं कि कलर इन कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। अब डी ट्रांजिशन क्या होता है, सी डी ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है, ट्रांजिशन होता है उसका, ओके। फिर से वो वापस डी ऑर्बिटल में लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, तो दिस इज डी ट्रांजिशन। और जिसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो ये कलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कलर शो करेगा, ओके। विजिबल रेंज के लिए दिस इज विबग्योर। आप कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है वो भी देखेंगे। इफ वन इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर, ओके, so this unpaired electron will absorb energy and transfer to this orbital और gets excited, मतलब वो excited state में जाएगा energy absorb करके। अब energy absorb होने के बाद this will not stable in this orbital, okay। ये energy release करेगा और फिर से अपने place पे आएगा, ठीक है। क्या होता है ना, फर्स्ट ये energy जो है absorb करेगा, ये ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र होगा, दिस इज डी ट्रांजिशन। एब्जॉर्ब एनर्जी करने के बाद, ओके, एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करने के बाद ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र होगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, ओके। एनर्जी ज़्यादा हो रहा है तो ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र होने के बाद, ओके, फिर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और फिर से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो जब एनर्जी रिलीज़ होगा, विजिबल रेंज में होगा, तो जो लैम्बडा का वैल्यू होगा वो उसके अकॉर्डिंग कलर शो करेगा, ओके। तो दिस इज डी ट्रांजिशन। और ये मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए उसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए टू एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड, ओके, एट हायर एनर्जी लेवल एंड रिलीज द एनर्जी वाइल ट्रांसफर टू लोअर एनर्जी लेवल, ओके। अब ये आपको याद रखना है, विबग्योर अगर ब्लू कलर है, ओके, ब्लू कलर है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसका होगा ओ, ऑरेंज, ओके। येलो के लिए वायलेट, ग्रीन के लिए रेड, रेड है तो ग्रीन, ओके। इफ रेड कलर का कॉम्प्लेक्स ये रेंज में ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा ग्रीन, ओके। तो ये जो आपको विबग्योर के हिसाब से याद रखना है, वी आई नहीं होगा इसमें, सिर्फ इंडिगो नहीं है, ओके। 6 कलर्स है, 7 कलर्स नहीं है, ओके। आई नहीं है तो यहाँ से वी आई को आपको छोड़ना है, VBGYOR, ओके। इस तरह से एक प्लस का साइन होगा, एक क्रॉस लाइन, और कहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स याद रखने के लिए, ब्लू के लिए दिस, रेड के लिए दिस, एंड येलो और के लिए वी वायलेट, ओके। सो आई को आपको नहीं लेना है, VBGYOR, ओके। इस तरह से आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स याद रखने के लिए
बनाना है। अ कलर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, अब एग्जाम्पल देखते हैं। अ कलर complementary to the absorbent. Okay, consider this example. Okay, in this H2O is the ligand, 6 ligands, aqua. Okay, and titanium is a central metal atom. The central metal ion titanium has electronic configuration 3D, and the electron occupies on the T2G sets orbitals. इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट करस्पॉन्डिंग टू this parameter promotes an electron from T2G level. Such energy gap is in case of this complex is 20,300 centimeter inverse, okay, and complementary color or to this imparted to the complex. A violet color of this complex arises from such DD transition, okay, DD transition के थ्रू कलर शो करेगा ये एनर्जी। दिस वॉज द लास्ट टॉपिक, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और लास्ट टॉपिक एक और है एप्लीकेशंस, ओके। सो एप्लीकेशन आप लोग रीड करो, एप्लीकेशन के पॉइंट्स बहुत ही इजी है। एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हीमोग्लोबिन का हम एग्जाम्पल लेते हैं, Fe रहेगा, ओके, उसमें सेंट्रल मेटल एटम। एंड सिस प्लैटिनम का एग्जाम्पल लेते हैं तो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है सिस प्लैटिनम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ होता है, और हार्डनेस ऑफ वाटर को चेक करने के लिए, ठीक है। तो दीज ऑल आर द एप्लीकेशन फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। थैंक यू। बकरी की आवाज़ आ रही है।